अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है जी अ रेन सोक्ड फ्लोटिंग मार्केट इन बरीशल, बांग्लादेश। अच्छा, बरीशल की एक मार्केट हमने पहले भी देखी है, गुआवा मार्केट देखी थी गुआवा हमने। मार्केट देखी थी बिल्कुल इसी तरह से। और आज की वीडियो इसलिए स्पेशल होने जा रही है क्योंकि हम देखने जा रहे हैं रेन सोक फ्लोटिंग मार्केट। बिल्कुल मॉनसून स्पेशल होने वाली है, इसका बिल्कुल मतलब बिल्कुल है और मुझे लगता है कि बड़ी खूबसूरत मार्केट नजर आने वाली है। चलते हैं, वीडियो देखते हैं। पैनोरामा डॉक्यूमेंट्री की ये वीडियो है, वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं गपशप। चलिए, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और हाँ, मैं आपके रिएक्टिंग है बस। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। নদীর বুকে বৃষ্টির কলকুহতান, যেন প্রকৃতির সাথে ঘনঘোর বর্ষায় একান্ত আলাপন। এই ঘনঘোর বর্ষায়ও থেমে নেই জীবনধারা। আধার চুইয়ে আসা নদী পাড়ের ঘন বৃক্ষরাজির নত মুখ উপেক্ষা করে একে একে পাড়ে ভিড়ছে কৃষজ নানা পণ্য বোঝাই ছোট ছোট কোষা নৌকা। বিভিন্ন স্থান থেকে নানা পণ্যে ভরপুর কোষা নৌকার এই মিছিল জড়ো হয়েছে বরিশালের বানারীপাড়ার বিশারকান্দি ইউনিয়নের বেলুয়া নদীতে। ঐতিহ্যবাহী ভাসমান বাজারের নাম বিশারকান্দি ভাসমান বাজার। এই ভাসমান বাজারে রবি এবং বৃহস্পতি সপ্তাহে 2 দিন হাট বসে। ভোর থেকে শুরু হয়ে দুপুরের আগেই ভেঙে যায় হাট। ধাপ পদ্ধতিতে চাষ করা বানারীপাড়ার বিভিন্ন ভাসমান সবজি ক্ষেত থেকেই এই বাজারে আসে তরতাজা টাটকা সবজি। বিরসা বরষা অক্লান্ত ঝিরিধারা উপেক্ষা করে হাটুরেরা ব্যস্ত নিজেদের কাজে। আর 10টি সাধারণ দিনের মতোই কর্মব্যস্ততা এখানে। বৃষ্টির যেন কোনো প্রভাবই পড়েনি এখানটায়। এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে নৌকার নিয়ন্ত্রণ, তারই মাঝে চলছে বেচাকেনা হরদম। সবজি হিসেবে শাপলার কদর বহু প্রাচীন, কারো কারো কাছে লাল শাপলা অধিক প্রিয়। তবে শাপলা ছাড়াও বেলুয়া নদীর আশপাশের 20-25টি গ্রামের কৃষক তাদের উৎপাদিত শাকসবজি, ফলমূল, বিভিন্ন ধরনের চারা, ধান ও চাল কেনাবেচা করেন এই ভাসমান হাটে। কৃষি নির্ভর গ্রামীণ জনপদের সকল মৌসুমী পণ্য সারা বছর বেচাকেনার কারণে সমৃদ্ধ হয়েছে বেলুয়া নদীর এই ভাসমান হাট। বেলুয়া বরিশালের উজিরপুর উপজেলার সাতলা ইউনিয়ন এলাকায় প্রবহমান বিশারকান্দা বাগদা নদী থেকে উৎপন্ন হয়েছে।
कश्ती भी चला रहे हैं, उसके साथ साथ काम भी कर रहे हैं। একসময় এই হাটের ক্রেতা ছিল কেবল আশপাশের লোকজন, তবে কয়েক দশক ধরে এই হাটে দূর দূরান্ত থেকেও ট্রলার নিয়ে আসেন পাইকারি ব্যবসায়ীরা। তাদের হাত ঘুরে এসব টাটকা সবজি পৌঁছে যায় দেশের নানা প্রান্তে। ये देखो उसके ये रखते हैं। শীতে মিষ্টি কুমড়ার চাষাবাদ বেশি হলেও বর্ষায় মাচায় ফলানো মিষ্টি কুমড়ার কদরও কম নয়। देसी खीरा, हाँ। সবুজের নানা বর্ণোচ্ছটা ছড়ানো এসব কচি শশা যেমন চোখের প্রশান্তি, তেমনি রসনায় তৃপ্তি এনে দেয়। বরিশালের নাজিরপুর উপজেলা সদর থেকে 18 কিলোমিটার দূরে এই বেলুয়া নদী। বৈঠাকাটা বাজার ও বেলুয়া মুগারঝোর গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে নদীটি। দোদুল দোলায় দুলতে দুলতে এক নৌকা থেকে আরেক নৌকায় হাত বদল হয় পণ্য। প্রবাহমান থাকে অর্থনৈতিক সচলতা। বরিশালের বিখ্যাত নোনা ইলিশ আর এই টাটকা কাঁচকলার সম্মিলিত মেলবন্ধন বাঙালির নোলায় নোনা জল ঝরাতে বেশ পারদর্শী। কৃষি নির্ভর এলাকার অর্থনীতিতে বেলুয়ার এই ভাসমান বাজার ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। উজিরপুর উপজেলার কেশবকাঠি, মশাং, চকমান, হারতা সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় আখের চাষের সুনাম রয়েছে। বর্ষায় আখের রসের মিষ্টতা খানিকটা কম থাকায় কদরও খানিকটা কম থাকে। ভাসমানী বাজারে হাটের দিন প্রতি 100 পিস আখ বিক্রি হচ্ছে 1500 থেকে 1800 টাকায়। নাজিরপুর ছাড়াও বরিশালের বাবুগঞ্জ এবং মুলাদি উপজেলায় আখের চাষ বেশি হয়। মিশ্রমালা, মধুমালা ও ঈশ্বরদী 208 জাতের আখ চাষ করেন এখানকার কৃষকরা। বৃষ্টির মুখরতা প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি এই খেটে খাওয়া মানুষের হৃদয়ে। বেচাকেনায় মত্ত এসব পাইকারের হাত ঘুরে আখেরি চালান চলে যাবে নানা অজানা গন্তব্যে। ভাসমানী হাটে কোষায় কোষায় ভর্তি হয়ে আসে মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, মিষ্টি আলু, লাউ, করলা, পটল, কাঁকরোল, চিচিঙ্গা, পেঁপে, কচু, কচুর লতি, কাঁচকলা, তাল, পুঁইশাক, লাউ শাক সহ বিভিন্ন পণ্য। এ এলাকার ভাসমান ধাপ পদ্ধতিতে চাষ হওয়া ফসলের মধ্যে অন্যতম লাউ। সবজি হিসেবে লাউয়ের যেমন কদর, তেমনি কদর লাউ শাকেরও। বৃষ্টি স্নাত তমসাচ্ছন্ন চকচকে পিচ্ছিলে নৌকা এখানকার মানুষের জীবনেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ভোর থেকে হাটে আগমন কৃষক, পাইকার ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের। এই ঝুম বৃষ্টিতে ভাসমান হাটে সবজি বা অন্যান্য পণ্যের পাশাপাশি নৌকায় ফেরি করা গরম গরম চিতই পিঠা আর চা হাটুরেদের কাছে যেন সাক্ষাৎ অমৃত।
কাঙ্ক্ষিত পণ্য কেনা শেষে পাইকাররা ছোটেন খুচরা বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে। কাছে পিঠের কোনো হাটের খুচরা ব্যবসায়ী তারা। প্রতি হাটে এই ভাসমান বাজারে 8 থেকে 10 লাখ টাকার সবজি বেচা বিক্রি হয়। अच्छा 8 से 10 लाख रुपए की सब्जी बिकती है यहाँ। বানারীপাড়া উপজেলার বিশারকান্দি, উমারের পাড়, উদয়কাঠি, কদমবাড়ি, বাইশাড়ি, চৌমোহনা সহ আশপাশের বিভিন্ন গ্রামের কৃষকরা তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সরাসরি এই হাটে বিক্রি করেন। বেলুয়ার জলে ঝরে পড়া, দৃষ্টিসীমা ঝাপসা করে দেয়া, বৃষ্টিতে জীবন্ত হয়ে থাকে কেবল কৃষ্ণবর্ণ ছাতার কোলাহল। তাদের মৌন দোলাচল বলে চলে লড়াকু মানুষের জীবন যুদ্ধের কথা। अच्छा, जब भी हम पैनोरामा डॉक्यूमेंट्री की वीडियो देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि भाई ये वीडियोस ना नेचर की बहुत ज़्यादा करीब हैं। और आप ये देखो कि इन लोगों के पास जो इतनी मेहनत करते हैं, इनके पास कोई वक्त नहीं है कि ये अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी ज़ाया करें। हमने इन्हीं डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर देखा है कि ये कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है और हाँ खत्म जी। यहाँ पे आके यहाँ पे- बिल्कुल। और यहाँ पे भी खत्म नहीं नहीं हो रही इससे है। आगे फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगी ना, हाँ, आगे हाँ, वो रिटेलर्स का काम आप ये चीज देखें कि इतनी तेज बारिश हो रही है और उसके अंदर भी ये अम्ब्रेला उन्होंने कैरी की हुई है और अपनी बोट को रो करते हुए वो चला यहाँ रहे तक हैं। आए प्लास्टिक हैं। के साथ उन्होंने कवर किया हुआ है, लेकिन अपनी हार्वेस्ट को वो लेके आ रहे हैं। और यहाँ हाँ पे जी। सिर्फ आपको यहाँ पे वो नहीं नजर आ रहे हैं आपको बेचने के लिए लोग, हाँ यहाँ जी। पे खरीदार लोकल भी खरीदार नजर भी आ रहे बिल्कुल। हैं। और जो खरीदने आए हैं उनकी कश्तियां ज्यादा बड़ी बोट्स हैं, ऐसा ही आपने है। देखा होगा, क्योंकि यहाँ से उन्होंने मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी लेकर जाना है। लेके हाँ, जा वो रहे हैं। बेसिकली कलेक्टर्स है। हाँ। उन्होंने एक बंदे से उन्होंने मल्टीपल लोगों से हाँ, कलेक्ट करना ऐसा है, ही उन्होंने अपनी है। कश्ती भरने बिल्कुल। के आप ये देखिए उन्होंने बताया कि ये जो मार्केट है ये थर्सडे को और संडे को Sunday यहाँ पे को लगती है। बिल्कुल। और ना सिर्फ यहाँ पे वेजिटेबल्स मिलती हैं, बस उसके अलावा भी चावल भी वगैरह हैं, भी है, fruits फ्रूट्स भी हैं, है हाँ। और शुगर केन वगैरह भी हमने बिल्कुल है। देखा और है। इसकी बहुत सारी टाइप्स भी उन्होंने टाइप्स बताई भी। कि वो अच्छा, एक चीज जिसकी समझ नहीं आई, वो लोटस फ्लावर और एक स्टेम वो बिक रहा था, उसकी हाँ। वो जो समझ नहीं कि वो किस रूट्स चीज लग में रही यूज थी होता ना अच्छा, ऐसे। लोटस फ्लावर का तो थोड़ा सा आप हमें बताइएगा कि भाई इसको किस तरह से खाया जाता है, मतलब कि एज ए सब्जी के तौर पे खाया जाता है, या जैसे हम ग्रीन अनियन का हाँ इस्तेमाल जी। करते हैं इसको भी वैसे इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्योंकि वो कह रहे थे कि अपनी जो roots के रेड साथ वाला से- पिंक वाला है जी। वो लोग ज्यादा पसंद ज्यादा करते ऐसे हैं। ही है। और इसके साथ एक सब्जी के बारे में मैंने आपसे पूछा, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं कि वो कौन सी सब्जी है। बिल्कुल। माशाल्लाह बांग्लादेश में इतनी सब्जियां हैं कि हमें तो शायद उनके नाम भी नहीं पता, लेकिन बहरहाल हम जितनी सब्जियां देख रहे हैं यहाँ पे, पम्पकिन देख रहे हैं, हम कद्दू देख रहे हैं, खीरे की कितनी वैरायटी हाँ जी। नजर हमें आती है। करना नजर आ रहा है। उसके अलावा हाँ। बहुत सारी लेमन की काफी वैरायटी बिल्कुल। हमें And नजर आप उसको आती मिस है। नहीं कर सकते जो कैफे हमने देखा है, फ्लोटिंग कैफे। हाँ, ये बहुत देखो यार, ज़्यादा। हर मार्केट की जान होता है, कोई भी ऐसा ढाबा, कोई भी ऐसा कैफे जहाँ पे आपको चाय चाय मिल ये वो जाए, बहुत बिल्कुल। जरूरी है। और फिर मौसम भी तो आप देख रहे हो ना कितना जबरदस्त है। बस चाय लेकिन- हो और मीठा हो या चाय हो और हमारे लिए पकौड़े हो, तो हाँ, ये मौसम हाँ, है। बिल्कुल इसी तरह से बहुत खूबसूरत वीडियो थी। बाकी आप बताइएगा, अगर ब्रिशल से आप हमें देख रहे हैं तो थोड़ा सा और इन मार्केट्स के बारे में हमें गाइड कीजिएगा। अच्छी सी वीडियो हो तो कोई हमें ज़रूर भेजिएगा, हम उसको भी देखेंगे। वीडियो कैसी लगी, हमारी रिएक्शन कैसा लगा, आपने ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।